Okay, another weekend of Premier League football, another weekend of dealing and handling and being interested in a lot of speculations at this point in time and a lot of weirdness, so to speak. Is where obviously it is Manchester United and it is their star player, their captain, their legend in the making, Bruno Fernandes, who was put off while taking a penalty by a very innocent looking tiny collision with the referee, and उसके बाद तो भाई just lost it. Welcome back to Top View. आज हम बात कर रहे हैं Like क्या that. हुआ यूनाइटेड Hmm. का फुलहम के अगेंस्ट जो 1-1 उन्होंने ड्रॉ किया एंड जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस ने एक पेनल्टी मिस करी. एमिल स्मिथ रो को लिटरली बस खुला छोड़ दिया, जा भाई तू गोल मार ले, कोई दिक्कत नहीं, जो इक्वलाइजर मारा एमिल स्मिथ रो ने. Hmm. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, a portion, I will not say a big portion, obviously not, but a portion of Manchester United fans, especially Manchester United fans on the internet, have sort of turned against him. Sort of. Their own captain, their savior from last season. If Hmm. it wasn't for him, I'm pretty sure Shivam would agree with me. If it wasn't for him, Manchester United would have been Very relegated. Let's talk about this. जो एक ब्रूनो फर्नांडिस का स्ट्रगल चल रहा है ऑलमोस्ट. I won't call it a struggle just yet, but for the lack of a better word, at United with this new system, with this new position, he has to play as a deep lying playmaker for some reason, Hmm. despite being one of the best number 10s available in the world right now. क्या लगता है So, शिवम, क्या मजा आया? पहले तो बता, मजा आया मैच देख? first half तो अच्छा था यार, मजा तो नहीं आया. By the end of it, I was hoping something. I think we had predicted like a 2-1 victory at best. Like I हाँ, think that was my prediction, है ना? that That was the was. only prediction I got wrong by the way. We'll speak about that as well, but later. So as far as the match went, the performance wasn't there. It's a draw. It's not a loss, but since it's a draw to Fulham, so yeah, Yeah. everyone's reactions are as such. Obviously, team needs to click. Team अभी भी prediction हमारी वही है. Let's straight jump to Bruno. ठीक है, let's not talk हाँ, about the match fair. as such. Let's straight jump to Bruno. Bruno has been a divisive figure since he has stepped on the pitch for United, for Yeah. many of the fan bases, not just like for most of the fan bases, and Everyone, including yeah, for everyone. almost everyone will agree that he is a fantastic football player, but he has his flaws. ठीक है, वो flaw जो generally मैं accept कर लेता हूँ, कल थोड़े तो मेरे को भी खटके हैं. स्पेशली भाई, अगर कोलिजन हो गया तो ऐसा स्टेयर डाउन करने की क्या जरूरत थी रेफरी को, कि जैसे Stare मैं down कर रहा है, क्या-क्या कर रहा है रेफरी की तरफ, रहने दे ना, हाँ, घूम वापस अपना कंसंट्रेशन कर. ऑब्वियसली रेक्स यू वोंट गेट इट. इतनी दिल्ली वाली हरकत थी ना वो, इतनी नहीं, दिल्ली दिल्ली वाली वाले भी नहीं हरकत थे थी यार वो. भाई, वो दिल्ली बिल्कुल वाले दिल्ली तो वाली हरकत थी. जबरदस्ती सड़क पे किसी को घूर रहे हो तुम, बिल्कुल ऐसा लग रहा नहीं, था बट मेरे को. दिल्ली वाले रो के नहीं दिखाते पहले, वो सीधा. हाँ, सीधा. बट वो बिल्कुल वो स्टेयर दैट वाज डाउन नॉट ऐसा था गुड. जैसे भाई की गाड़ी किसी ने ठोक दी थोड़ी सी, और वो बाहर निकला, उसने गाड़ी चेक करी और उसके बाद स्टेयर डाउन हुआ, फिर वो चला गया. फिर वो उसने कहा वो कुछ नहीं गया नहीं ना, बोलेंगे, फिर उसके चल. बाद उसने रो के दिखाया. That was, I think that just proved some of the point that a lot of fan bases I have heard from my friends, Yeah. from you guys, that this is the problem with Bruno. I think that was at the core, that was at the front yesterday. He missed a penalty that is still acceptable. उससे पहले वाला कम था, Yeah. because he's a fantastic penalty taker. He hardly misses. After Very, that, very. let's speak about his positioning. That has been a concern if you ask United fans. I have एक been एक seeing that. चीज, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज, हाँ. द लास्ट टाइम एक और, आई एम श्योर सबको पेनल्टी बहुत फेमसली पेनल्टी मिस याद है उस बंदे का. वो भी तब हुआ था जब किसी ने उसके टेम्परमेंट के साथ मजे लिए थे. एमी मार्टिनेज ने जब एस्टन विला के साथ जब खेलते हुए, रोनाल्डो था टीम में, ब्रूनो वाज स्टेपिंग अप टू टेक द पेनल्टी एंड एमी हाँ. मार्टिनेज केप्ट सेइंग यू डोंट टेक इट, रोनाल्डो की तरफ देख के व्हाई डोंट यू टेक इट, व्हाई डोंट यू टेक इट बोलता जा रहा था उसको, एंड ब्रूनो ने वो पेनल्टी मिस करी थी. तो टेम्परमेंट तो हाँ, वहां भी इशू है. टेम्परमेंट तो एक्चुअली हाँ वो भी था. So now Sorry, हाँ. people know how to make Bruno miss penalties Yeah, easily, clearly, by clearly, the way, है ना? So like this is clearly. a foolproof way of वही. how to make Bruno miss a penalty. But moving on from the penalty incident, and we'll get to what Rex's opinion is on Bruno and his positioning. This has been a thing in my mind as well, and I'm sure to a lot of United fans, कि भाई उसकी position has always been best position is closer to goal.
since he's arrived. His first couple of seasons वो मिडफील्डर लगता ही नहीं था, वो फॉरवर्ड ही लगता था, वो भाई रहता भी वहीं था और बेस्ट भी खेलता वहीं था। मेरे को अभी भी यही लगता है उसकी बेस्ट पोजीशन तो नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल कल वाली परफॉर्मेंस देख के तो many will agree with the signings we've had. I don't think we'll see him play forward इतना। I think Amorim wants him to play there only. तो या तो सेकंड मिडफील्डर बहुत ही स्पेसिफिक लाओ, या इस पोजीशन में ब्रूनो अनड्रॉपेबल नहीं है, मेरा ये मानना एज अ प्लेयर। मतलब ये कुछ हरकतें छोड़ के हिज एटीट्यूड, द वे ही वर्क्स, द वे ही वर्क्स हार्ड इज वन ऑफ द रीजंस आई थिंक यूनाइटेड फैंस लव हिम। लाइक दैट इज व्हाई वी डिफेंड हिम एज वेल, कि चाहे परफॉर्मेंस गिरती भी हो कभी कभी, भाई का एटीट्यूड, भाई का फोकस हमेशा टॉप नॉच रहता है। दैट इज व्हाई आई सेड टू सुजय कि आई नो उसके लिए बिड आई है पहले इस साल। I want him in the squad because he is reliable and we know कि we can trust him. He has that attitude कि जीतना है ना। इन परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी हरकतों के बाद डाउट तो आए होंगे लोगों के मन में। And see, to be very fair again, I have all the respect for Bruno Fernandes as a player, the quality that he has, what he does on the pitch, and the way he carries himself on the pitch. A lot of times, I'm not saying all the time, a lot of times, it does leave थोड़ा सा कि यार क्या कर रहा है यार, क्यों कई बार ना आप इरिटेट होते हो उस प्लेयर से, नॉट बिकॉज हाउ गुड ही इज, बिकॉज ही द वे ही इज बिहेविंग ऑन द पिच, एंड दैट इज द बिगर इशू। पहले भी हमने देखा है अपने टीममेट्स के साथ खिंच रहा है, गलिया रहा है, एंड वेरी मतलब वाइनी उसमें, नॉट इवन ट्राइंग टू पंप एवरीबडी अप एंड नॉट इवन ट्राइंग टू बी एंग्री, जस्ट वाइनी। दैट आई थिंक rubs people the wrong way, to be fair. But Rex bhai, this is something we spoke about पहले। इन लोगों ने 2 नंबर 10 साइन किए हैं, 2 बहुत अच्छे नंबर 10 साइन किए हैं, कुन्या और एम्बुएम। एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट दे आर डूइंग इज अगेन, जो उनका फॉर्मेशन है आपका सॉर्ट ऑफ 3-5-2-1 है, बट 5-2 जो भी है, अनफॉर्चुनेटली उसकी जगह उतनी नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। एंड जबकि कल के मैच में स्ट्राइकर नहीं खेला था इनका, कुनिया स्ट्राइकर खेला था और बीच बीच में एम्बुएमो आगे जा रहा था। मेसन माउंट वाज प्लेइंग एज वन ऑफ द 2 नंबर 10s. Bruno was still being fit there because in the long run they want him to play there so that they can accommodate all of their attacking talent. है ना? पर ऐसे में क्या ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है? थोड़ा सा क्या बोलते हो रेक्स भाई? अच्छा, बात तो सही है भैया। देखो, एक तो ये चीज है कि आपका लास्ट सीजन का वो मसीहा जैसा है, उसके बगैर तो आप यूनाइटेड तो शायद रेलीगेट ही हो जाती तो वो बात है। तो इसीलिए उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि यू हैव मेड 2 ब्लॉकबस्टर साइनिंग्स, सो यू कैन जस्ट वेस्ट देम ऑन योर बेंच। 3 तो है, लेकिन हाँ, तो नंबर 10 है ना, नंबर 10 आपका एक ब्रूनो पहले से ही थे, तो आपको 2 इंटीरियर्स खिलाने हैं और उसमें से 2 आपके नए साइनिंग्स है, तो उनको तो आपको खिलाना ही है। दूसरी चीज ये है कि ब्रूनो आपके यूनाइटेड फैन बेस का सबसे ज्यादा चाहता है, उसको आप बिठा नहीं सकते। हाँ, कैप्टन है यार क्लब का, नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ब्रूनो क्यों बैठा है बेंच पे, लेकिन यार अगर वो इतना बुरा खेलेगा आउट ऑफ हिज पर्टिकुलर पोजीशन, वो अगर इतना बुरा खेलेगा तो लोग तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि यूनाइटेड फैंस के लिए ऐसा हो गया फॉर सर्टेन फैन बेस, सर्टेन पार्ट ऑफ द फैन बेस, कि नया खिलाना मिल गया, पुराना भूल जाओ। हाँ, होता है बहुतों के साथ होता है, सही कह रहे हो। तो नया झुंझुना मिल गया उनको, तो ये है बातें उनके लिए अभी एट द मोमेंट, कि इसको एकोमोडेट कैसे करें, क्योंकि जो टॉक्स चल रही है, क्योंकि इनको एक डीप लाइन प्ले मेकर चाहिए है, इनके पास एक खेल सकता है वो कोबी मैनो, लेकिन यार वो तो नहीं खिला रहा, ईगो बैटल चल रहा है उसके साथ। तो अगर कार्लोस बलेवा जैसे प्लेयर्स को अगर लाना है, तो ये लोग फैन बेसिस में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इसको अगर बेच देंगे पैसा मिल जाएगा, बिड मार देंगे हम कार्लोस बलेवा के लिए, लेकिन भाई बलेवा इस साल नहीं ही निकलेगा ब्राइटन से, ना बलेवा आ रहा है ना एडम वाटन आ रहा है, ये दोनों नहीं आ रहे, तो रिप्लेस कैसे करोगे उसको? एक तो हो जाएगा आपका, एक अटैकिंग टैलेंट भी जाएगा, फिर आपको बदले में कुछ मतलब जो आपको
चाहिए डीप लाइन प्लेयर मगर वही भी तो फायदा भी नहीं है उसको बेचने वही तो वही एंड अभी ना जो देखो इशू अगर देखो इसका तो आपने जैसे बात करी कोबी मैनू, रोबिन आमरम ने बोल दिया है कल मैच के बाद कि जी कोबी मैनू इज competing with Bruno Fernandes for that one position in the midfield. I don't think that is fair on either of the players. वो कोबी मैनू की एक्चुअल पोजीशन है, ब्रूनो फर्नांडिस की वो एक्चुअल पोजीशन है नहीं, तो ना ब्रूनो फर्नांडिस के लिए वो फेयर है ना कोबी मैनू के लिए वो फेयर है टू बी कंपीटिंग विद हिम. यूनाइटेड का एक इशू है डिफेंसिव मिडफील्डर. अगेन कैसेमीरो वाज नॉट बैड, ऑनेस्टली दे कुड हैव केप्ट हिम ऑन द पिच. उसके जाने के बाद से थोड़ा सा और ओपन अप हो गया था मिडफील्ड. However bad he has been over the last couple of seasons, कल के मैच में genuinely इतना बुरा नहीं खेल रहा था वो. आपके पास कैसेमीरो का भी कोई इतना अच्छा वो नहीं है देखा जाए तो. It's just like you have worse players than Casemiro. उसको रिप्लेस भी कौन करता है? मैनुअल उगारते. वो तो he's not been at it. वही उगारते अभी तक सेटल ही हो रहा है एक सीजन से. अब वो अब क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम है. बट अगेन इट्स नॉट लाइक दे डोंट नीड बलेबा, दे डू. A lot of people are saying कि मैनू है बलेवा क्यों चाहिए. प्रॉब्ली दोनों चाहिए at this point in time because especially आप effectively दो मिडफील्डर्स के साथ खेल रहे हो. Most teams in the Premier League are playing with three midfielders in that zone. तो आपका ओवर पावर होना ज्यादा आसान है. कल फुलम के अगेंस्ट भी ओवर पावर हुए हैं. इनफैक्ट फुलम के कोच ने बोला भी है बाद में कि we had this tactic in mind. We had to overpower the midfield because they are a man down. तो आपका सबको पता है आप क्या कर रहे हो, तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए मिडफील्ड में. अब एक ऐसे प्लेयर जिसका एनर्जी वाला प्राइम थोड़ा सा पीछे रह गया है कैसेमीरो में. दूसरा ऐसा प्लेयर जो वो उस पोजीशन का है ही नहीं इन ब्रूनो फर्नांडिस. दैट इज अ बिट ऑफ एन इशू. बट कमिंग टू सेलिंग ब्रूनो फर्नांडिस, अपेरेंटली इस पूरे ड्रामे में आग में घी का काम कर रहे हैं अल हिलाल, जिन्होंने अगेन रिपोर्टेडली एक बिड मारी है 90 to 100 million pounds की. And United, again reportedly in the same report, United have left the decision on Bruno Fernandes whether he wants to go or not. अगर इस पूरे में थोड़ा सा भी सच and United have not actually taken a call कि भैया नहीं बेचेंगे, do you think there is merit to this conversation even? I think it's not just because of the performance yesterday or even in against Arsenal, because वहां पे भी Bruno in this position made some mistakes. ये I think link up तो कोई पहले भी आया था सऊदी का, and then I think he also chose not to. Big credit to Bruno for not taking a big payday. But आज की डेट में conversation तो with transfers we know ऐसी ही है, and legit भी हो सकती है. Now it's up to him, it's up to the club. I would like to see him still in the club. I think he's that good a player, still important, far more than most. But if he chooses to leave for a big money, तो खैर मैं क्या ही रोक. But I hope it doesn't happen for me. Okay. Like as a United fan. If you say कि as a United fan you want him to stay, do you want to see him throughout the season in that position जो हमने पिछले दो मैचेस में देखा है अभी तक? नहीं, I from last season as well when he started playing that position, I was not happy, and I'll try to summarize this in a way. ऐसा नहीं है कि ability नहीं है उसके पास. He can play a deeper role. He has the ability. Aptitude है, attitude नहीं है. Attitude makes a big difference. As an example, Wayne Rooney had the ability to play a deep lying midfielder. He had everything in him. He did. Messi can play deeper in midfield, but उनका instinct उन्हें आगे भेजता है. उनका instinct ही उन्हें कहता है कि नहीं, हम स्पेस देखेंगे, हम आगे जाएंगे. वो एक instinct है, वो एक फॉरवर्ड का instinct है. तुम उसे हटा नहीं सकते और तुम्हें ला भी नहीं सकते. वो ही ब्रूनो में है. वो instinct उसका उसे आगे ही भेजेगा. तो वो बहुत suited तो नहीं है. Some matches yes, a lot of matches नहीं. There in that position you can find better players. He will have to share responsibilities with other, and he's best playing closer to the goal. No matter how you play him, closer to the goal. That's his best position. क्या बोलते हो रेक्स भाई? अगर तो this is the team that is going in, अगर जिस हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा ट्रांसफर विंडो, मेरे ख्याल से हद से हद अगर कोई प्लेयर आ भी गया इन लोगों का तो गोलकीपर ही आएगा. एक के साथ लिंक भी हैं ये लोग अभी. If Bruno is to stay, एक ना बहुत पुराना वो आता है कि okay, a lot of your very good players have the ability to play in multiple positions. But should you do that to your best player? आपका
एंड रेक्स भाई बोलना इसमें, क्या आपका बेस्ट प्लेयर उसके बेस्ट पोजीशन पे जहां पे वो बेस्ट इम्पैक्ट कर सकता है आपकी टीम के लिए दे मैच सकता को, क्या आपका बेस्ट प्लेयर अपनी बेस्ट पोजीशन में नहीं खेलना चाहिए? मैं अगर भैया एग्जांपल दो ना, तो अभी टॉटनहम का जो हाउलर चल रहा है पूरे ट्रांसफर विंडो में, तो सब यही बोल रहे हैं कि अगर नंबर 10 नहीं है, या तो कुडूस को खिला दो नंबर 10। भाई मैं तो नहीं कर सकता। वो खेलेगा तो अपना राइट विंग पूरा डेड हो जाएगा। हाँ, क्या होगा वही फिर? वही क्रिएटिविटी same. खत्म हो जाएगी वहां से। That's what I'm तो saying. That's what I'm trying to say कि ये थोड़ा सा एक अजीब सिचुएशन है इन लोगों का, नहीं? हाँ, हाँ थोड़ा सा कनंड्रम है ना, थोड़ा सा। हाँ, अगर तो आप ये कर सकते हो कि आप अगर ब्रूनो को स्टार्ट नहीं कराते, या तो मेरी गो राउंड कर दो, रोटेशन में खिलाओ तीनों को, कभी ब्रूनो हाँ। खेल रहा है, कभी कुनिया खेल रहा है, कभी एम्बुएमो खेल रहा है, या फिर बैकअप ही बना दो ब्रूनो। यहाँ पे खिला के बस आउट ऑफ पोजीशन खिला के उसकी बस रेपुटेशन खराब हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, कॉन्फिडेंस भी डेंट हो रही है उसकी। तो वो एक प्लेयर है, वो अगर अंडर कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ही बुरा खेलेगा, बहुत, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज्यादा जल्दी चढ़ जाता है ये चीजें। अगर चीजें अराउंड में अगर बहुत ही खराब, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा अभी मैनेजर को। हार्ड डिसीजन है, लेकिन यार चॉइसेस तो बनाने पड़ेंगे। And to be honest, in conclusion at least, ये जो सेंटेंस आया ना कि कोबी मेनू इज competing with Bruno Fernandes, I don't think that makes a lot of sense. Honestly, it should not be that. It's just a Different ego positions, different disciplines, different energies needed. बाकी देखते हैं, आप लोग बताओ यार, आप लोगों के हिसाब से क्या ब्रूनो फर्नांडिस को वापस आगे भेज देना चाहिए? अगर नहीं तो क्या उसे बेच देना चाहिए जब उसकी वैल्यू इतनी अच्छी मिल रही है? क्या पता अगले सीजन ना मिले, अगर उसे डीप लाइन की खिलाते रहे और ये हो परफॉर्मेंस जाता, खराब होती रही। भेज देना चाहिए या बेच देना चाहिए। वही तो क्या, मे बी जस्ट कैश इन व्हेन यू कैन, प्रोबब्ली इफ यू नॉट प्लानिंग टू प्ले हिम इन हिज एक्चुअल पोजीशन, देन व्हाई माइट एज वेल, क्योंकि इतने तो नहीं मिलेंगे इसके बाद, है ना? तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। बाकी तो यार यू नो द ड्रिल, लाइक कर दो, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़े थोड़े वापस बढ़ने शुरू हुए हैं, लाइव स्ट्रीम शुरू हो गए हैं बाय द वे। बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक लाइव स्ट्रीम हो चुका है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखो ताकि आपको पता चले अगला लाइव स्ट्रीम कब होगा। ठीक है, चलो ऑन दैट नोट, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं।